کراچی کی حالیہ بارشوں نے برسر اقتدار ٹولے کی زیادتیاں بے نقاب کر دیں۔ اپوزیشن نے اپنی سیاہ کاریاں بچانے کے لیے ملک کی سالمیت داؤ پر لگائی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی ترجمان پنجاب حکومت سے ملاقات میں گفتگو، کہا بلدیاتی انتخابات سے عوام کی خدمت کا ایک اور وعدہ مکمل ہوگا۔ کراچی کے لیے 1100 ارب کا پیکج دے کر تنازع کھڑا کر دیا گیا۔ حکومت عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ اپوزیشن کے فیصلہ کن کردار کا وقت آ گیا۔ خواجہ سعد رفیق کی میڈیا سے گفتگو، بولے حکومت نہیں چاہتی کہ نواز شریف واپس آئیں، یہ سب جھوٹ بول کر چورن بیچ رہے ہیں۔ پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کیس میں سعد رفیق اور سلمان رفیق کی احتساب عدالت میں پیشی، حاضری لگا کر واپس چلے گئے۔ ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں 15 ستمبر سے بتدریج بحال کرنے کا اعلان۔ 15 ستمبر سے 9ویں، 10ویں، انٹرمیڈیٹ اور یونیورسٹیز کی کلاسز شروع ہوں گی۔ 23 ستمبر سے 6ٹھی تا 8ویں جماعت کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی۔ 30 ستمبر سے پری پرائمری سے 5ویں جماعت تک کی کلاسز کا آغاز ہوگا۔ ایس او پی پر عمل لازمی قرار۔ خیرپور میں تھانہ رانی پور کی حدود میں نامعلوم افراد کی گھر میں گھس کر فائرنگ، شوہر جاں بحق، اہلیہ شدید زخمی ہو گئی۔ دونوں نے 15 سال قبل پسند کی شادی کی تھی۔ پولیس کے مطابق خاتون کے رشتہ داروں نے فائرنگ کی، جنہیں پسند کی شادی پر رنج تھا۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ بہاولپور میں مسافر خانہ کے قریب آئل ٹینکر الٹ گیا۔ ٹینکر سے 40,000 لیٹر پیٹرول موجود تھا۔ ٹینکر سے بہنے والا پیٹرول سڑک پر پھیل گیا۔ پولیس نے سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ خیبر پختونخوا میں زندگی بچانے والی دواؤں کی قیمت میں 30 سے 40% اضافہ۔ دوائیں بازار سے غائب کر دی گئیں۔ عوام کہتے ہیں ریگولر استعمال کی دوا کیسے چھوڑ سکتے ہیں، مجبوراً دوا خریدنی پڑتی ہے۔ ڈسٹنس کی وجہ سے اور ریگولر جو میڈیسن کا یوزز ہے وہ کرونا کی وجہ سے زیادہ تر جو ہے بند ہے، تو اس وجہ سے مٹیریل باہر جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے مٹیریل نہیں ہے، جس کی وجہ سے میڈیسن میں ملنے میں دشواری ہے، پروڈکشن سٹاپ ہے۔ روز بروز جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں میڈیسن میں اضافہ ہو رہا ہے، جو چیز مارکیٹ میں اویلیبل تھی وہ ابھی بلیک پہ بھی ہے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز میں کمی جاری ہے۔ ایک دن میں 330 کیسز رپورٹ، تعداد 2,99,233 ہو گئی۔ مزید 5 چل بسے، اموات 6,350 ہو گئیں۔ اب تک 2,86,157 افراد وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر ماہا ہلاکت کیس میں نیا موڑ، نامزد ملزم جنید کا ماہا کے والد پر قتل کا الزام۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا ماہا اور والد کے درمیان جائیداد کا تنازع تھا، واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی جائے۔ ماہا کے بھائی کے ڈرگ ٹیسٹ کا بھی مطالبہ۔ پہلے آپ کو بتائیں لاہور کے علاقے ٹکسالی میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تفصیلات ہما بٹ کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سعید بلوچ سے، جو اس وقت ٹکسالی کے علاقے میں موجود ہیں۔ سعید بتائے گا اس علاقے میں موجود دیگر گھروں کی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں ٹکسالی گیٹ کے اسی گھر کے سامنے موجود ہوں جہاں پر یہ افسوسناک سانحہ ہوا اور 6 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات یہاں پر ہوتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے جب بارش ہوتی ہے تو مکان کی چھتیں گرنے کے، مکان کی دیواریں گرنے کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے لوگ جاں بحق بھی ہوتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ، یہاں پر 800 سے زائد گھر ہیں اس ٹکسالی گیٹ کے اس علاقے میں، اور یہ ساری عمارتیں جو ہیں یہ مخدوش ہیں۔ لیکن یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ورلڈ سٹی اتھارٹی بھی قائم کی گئی ہے کہ جہاں پر جو تاریخی عمارتیں ہیں انہیں پریزرو کیا جائے، اور جو لوگوں کے مسائل ہیں انہیں بھی حل کیا جائے، اور لوگوں کو یہاں پر متبادل جگہ دے کر ان عمارتوں کو خالی کرایا جائے، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ لیکن نہ ہی ضلعی انتظامیہ کے کان پر جوں رہی ہے، اور نہ ہی ورلڈ سٹی کے جو حکام ہیں وہ آتے ہیں، NGO کے لوگ بھی آتے ہیں، علاقے کو وزٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کو ایک وارننگ دے دی جاتی ہے کہ یہ علاقہ خطرناک ہے اور یہاں سے آپ نقل مکانی کر جائیں۔ لیکن اس بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ یہ جو لوگ ہیں یہاں پہ، یہ اگر یہاں سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے۔ بالکل صحیح بلوچ، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا جس طریقے سے یہاں پر لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ مخدوش ہے آپ کے گھر، یہاں سے نقل مکانی کی جائے، تو لوگوں کا کیا بتانا ہے؟ متبادل دینے کے حوالے سے کوئی انتظامیہ بات کرتی ہے؟
जी लोगों का यही कहना है कि उन्हें 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान बनने से पहले। सईद, आप हमारे साथ कि लाइन ये पर भी घर हैं मौजूद और रहिए, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तबरेज़ मरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असिस्टेंट साहब। ये बताइएगा कि टकसाली एक पुराना इलाका है, ज़्यादातर मखदूश इमारतें हैं, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे वाक़यात रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? आज जो वाक़या रात को 3 बजे वाक़या हुई है जी तबरेज़, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो हमारे नाज़रीन को बताइए। जिस मकान की छत गिरी है, दिस वाज नॉट डिक्लेयर्ड अ डेंजरस बिल्डिंग। ये बिल्डिंग बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस मकान के साथ एक और मकान था जो कि 12 साल से बंद था और वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। हालिया बारिशों के बाद उस मकान की छत गिरी है यहाँ पे, और उसके नतीजे में रूफ कोलैप्स हुई है इस जगह की। तो जिस मकान की रूफ कोलैप्स हुई है वो इटसेल्फ जो है वो डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर नहीं थी। इस हवाले से जो है वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की टीम्स जो है वो मुताबिक बार इंस्पेक्शंस भी करती हैं, स्पेशली इस तरह के एरियाज में जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं। तो ये नहीं थी, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो डेंजरस बिल्डिंग है उसके हवाले से इंतजामिया कार्रवाई भी करती है। ऐसी जगहों को सील भी किया जाता है और ऐसी जगहों के ओनर्स होते हैं उनको फिर एक्शन दिया जाता है। अच्छा तबरेज़ साहब, यकीनन इतने बड़े इलाके से मखदूश इमारतों को ख़त्म करना एक मुश्किल और बड़ा काम है, लेकिन इंसानी जानों की कीमत पर तो ऐसी मखदूश इमारतों को छोड़ा नहीं जा सकता ना? एब्सोल्युटली एग्री। इंसानी जान की तो कोई भी कीमत नहीं है, और बात यही है कि एक बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, उसके ऊपर एक और बिल्डिंग कोलैप्स करती है, और उसके नतीजे में अगर कोई वो ओरिजिनल बिल्डिंग कोलैप्स करती है तो दिस इज जैसे कहते हैं कि वो डेंजरस बिल्डिंग के जिम्मे में शायद वो चीज़ नहीं आती, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सपोर्ट हम कर सकते हैं वो डेफिनेटली करेंगे। अच्छा तबरेज़ साहब, ये बताइएगा, जैसे कि हमारे नुमाइंदे सईद बलूच सबसे कुछ देर पहले तफसीलात बता रहे थे, 800 के करीब यहाँ पर इस तरह की इमारतें हैं जिसमें लोग रिहाइश पजीर हैं, और ये बहुत पुराने इलाके हैं। यहाँ पर वॉल्ड सिटी बनाई गई है, अथॉरिटी है जो इस सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करती है। तो क्या सिर्फ अथॉरिटी का लोगों को जाकर तंबी कर देना काफ़ी है, या वहाँ पर अमली इक़दाम से भी कुछ होना है? जी बिल्कुल, अमली इक़दाम किए भी जाते हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का एक बिल्डिंग जो विंग है उसका काम है दैट इज स्पेसिफाइड, और उसका पर्पज ये है कि उसने जाके चेक करना होता है कि इमारतें जो है जो पुरानी इमारतें हैं उनकी क्या कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पे बेसमेंट्स की खुदाई के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि अगर सारे मकान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और किसी जगह पे अगर कोई बेसमेंट वगैरह की खुदाई से मकानों में क्रैक्स पड़ते हैं तो वो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जिसके तहत तमाम वो चीज़ें रोकी जाती हैं, जिसके तहत कोई भी खतरा बन सकती है इमारत। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज़ मरी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ को ज़्यादती के बाद कत्ल के लर्जा खेज वाक़े में पुलिस का रिवायती अंदाज, असल मुल्ज़िमान का ताहाल मालूम नहीं किया जा सका। पुलिस ने 15 मुश्तबा अफराद के नमूने DNA से टेस्ट के लिए जामिया कराची भिजवा दिए हैं। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान शेख, बताइएगा पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? देखिए सादिया, अब तक जो SSP ईस्ट से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक 15 मुश्तबा अफराद के सैंपल दिए गए हैं जो DNA टेस्ट के लिए जामिया कराची की लैब को भेजे गए हैं, लेकिन इस वक्त तक असल मुल्ज़िमान का ताहाल पता नहीं सका है। ये 5 साला बच्ची मारवा तो जो है वो ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। जामिया कराची की DNA लैब की इंतजामिया से जब हमने मालूमात की है तो उनके मुताबिक इनके नमूने टेस्ट होने में और तशख़ीस होने में कम से कम 20 रोज़ का वक्त लग सकता है। लेकिन SSP ईस्ट साजिद सदरी का ये कहना है कि इस हवाले से तफ्तीश जारी है, किसी को जिम्मेदार ठहरा देना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। बहुत शुक्रिया कामरान, आपने अपडेट किया। खैबर पख्तूनख्वा में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात महंगी हो गई। कीमतों में 30 से 40% इजाफे के बाइस कई अद्वियात मार्केट से गायब हो गई हैं। अवाम परेशान हैं और पेशावर से इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं काशान अवान। अद्वियात की कीमतों में आए रोज़ इजाफा। अमराज़ कल्ब, ब्लड प्रेशर, शुगर समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में 30 से 40% इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया। एक तरफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा तो दूसरी जानिब मुतअद्दिद अद्वियात मार्केट से गायब कर दी गईं।
डिस्टेंस की वजह से और रेगुलर जो मेडिसिन का यूजेस है वो कोरोना की वजह से ज़्यादातर जो है बंद है, तो इस वजह से मटेरियल बाहर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से मटेरियल नहीं है, जिसकी वजह से मेडिसिन में मिलने में दुश्वारी है, प्रोडक्शन स्टॉप है। रोज़ बरोज़ जो आप भी देख रहे हैं मेडिसिन में इजाफा हो रहा है। जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल थी वो अभी ब्लैक पे बिक रही है क्योंकि वो शार्ट है, आगे से आ नहीं रही। आवाम कहते हैं रेगुलर इस्तेमाल की दवाई कैसे छोड़ सकते हैं, जिस कीमत में भी मिले लेनी तो है। हार्ट की मेडिसिन या हाइपरटेंशन की मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की गोलियां है, वो लेंगे। वो पहले हमें मिलती थी तकरीबन 100 रुपये 80 रुपये का पलता, आज वो मिल रही 280 300 रुपये का पलता। और आपको पता है ये रेगुलर मेडिसिन है, तो ये होगा क्या, ये आप खुद देखें, लोग मरेंगे और क्या होगा। अद्वियात में इस्तेमाल होने वाला बैरून ममालिक से बरामद होने वाला खाम माल, कोरोना वायरस के बाइस फैक्ट्रियों की बंदिश और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की करस्तानियाँ वजह बन रही हैं आवाम को महंगी मेडिसिन की। अपोजिशन ने 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। पूरी पाकिस्तानी कौम की नजरें एपीसी और उसके नताइज पर है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और नाइंसाफी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है और लोग इस जबर और कहर के निज़ाम से तंग आ चुके हैं। अपोजिशन जमातों की जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करें और हुकूमत की सिमत को दुरुस्त करें, और अगर हुकूमत अपनी सिमत अब भी दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कानून और आइन के मुताबिक जो इक़दामात उठाए जा सकते हैं वो इक़दामात उठाएं, क्योंकि ये हुकूमत और इसका तर्ज अमल पाकिस्तानियों के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुका है। 1100 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, तो 1100 अरब किधर से आएगा? ऐलान कर दो कौन सा करना है। ये समझता हूँ सब्ज़ बाग है जो इमरान खान साहब ने पहले कौम को दिखाए, और अब वही सब्ज़ बाग वो कराची के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची की हालिया बारिशों ने बरसरे इख्तदार टोले की ज़्यादतियाँ बेनकाब कर दी। अपोजिशन ने अपनी सियाहकारियाँ बचाने के लिए मुल्क की सालमियत दाव पर लगाई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की तनकीद, कहा बल्दियाती इंतखाबात से अवाम की खिदमत का एक और वादा मुकम्मल होगा, शहर कायद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपको बता रहे हैं कराची की हालिया बारिशों ने बरसरे इख्तदार टोले की ज़्यादतियाँ बेनकाब कर दी हैं। अपोजिशन ने अपनी सियाहकारियाँ बचाने के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की तनकीद। पंजाब और सीसीपीओ का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। आईजी शुएब दस्तगीर दूसरे रोज भी दफ्तर नहीं पहुंचे। आईजी पंजाब को एतमाद में लिए बगैर सीसीपीओ को तैनात किया गया था। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख से। सलीम, बताइएगा आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर के तनाज़े के हवाले से क्या कुछ तफसीलात मजीद सामने आई हैं? जी, जो तफसीलात वो ये हैं कि आईजी पंजाब जो है वो आज फिर अपने ऑफिस नहीं पहुंचे, और जो आईजी पंजाब का ऑफिस है वहाँ पर जो बड़े अफसरान हैं वो भी इस मौजूदा सूरत हाल की वजह से अपने दफ्तर नहीं आए। और आईजी पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की थी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और कहा था कि इतने बड़े ज़िले का सीसीपीओ जो है वो मेरी मर्ज़ी के बगैर तैनात कर दिया गया। और फिर सीसीपीओ लाहौर ने तैनाती के बाद ये भी कहा है कि आईजी पंजाब की तरफ से अगर कोई भी हुक्म आए तो उस पर अमल दरामद से पहले मुझसे पूछा जाए, जिसकी वजह से जो है आईजी पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को कहा था कि अगर सीसीपीओ जो ये हैं इनको मेरी मर्जी के बगैर यहाँ तैनात किया गया है तो फिर मैं अपने ओहदे पर काम नहीं कर सकता। जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि आपकी बात सुन ली और अब सीसीपीओ को भी दोबारा बुलाएंगे और उनको भी बात सुनेंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि सीसीपीओ लाहौर को जो है आज किसी भी वक्त तलब किया जा सकता है और मामला सुना जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब की ये कोशिश है कि इस मामले के जो है वो इस तरह एमिकेबली हल करवा दें। अगर हल ना हुआ तो ये भी हो सकता है कि आईजी पंजाब जो है उनको इस ओहदे से हटा दिया जाए। जी सलीम शेख, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं स्वात पुलिस ने मोटरसाइकिलें चोरी करने और घरों में डकैतियां करने वाले गिरोह के 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के कब्जे से 36 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और नकद रकम बरामद कर ली गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर अंजुम। स्वात की इलाका कबल पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 36 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। जो इसकी हमने जब रिकॉर्ड निकाली है तो ये अकेला खुद ये वारदात करता है, फिर इसके साथ जो दूसरे वो है जिस पे ये बेचता है, आगे वो दूसरों पर बेचता है, तो उनको भी हमने बास को अरेस्ट किया हुआ है। कबल की इलाका गुलजबा में घर से डकैती के दौरान 50 तोले सोना और 3 लाख रुपए से जायद की चोरी हुई थी, जिसके मुल्जिमान को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके लाखों रुपए बरामद कर लिए हैं। इनसे जो रकम वगैरह थी वो माली मसरूका वो भी हमने बरामद की है, और जो पिस्टल इन लोगों ने वारदात में इस्तेमाल की थी वो भी हमने इसमें बरामद की है।
गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के है। अनवरन